Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 12th, that is Human Health and Diseases. Before we proceed with this video, let us first revise what we have read in the previous session. In the previous session, we have discussed about the lymphoid organs. So there are two types of lymphoid organ. The first one is primary lymphoid organ and the second one is secondary lymphoid organs. The primary lymphoid organs include the bone marrow and the thymus. When we talk about the bone marrow, so it is a site where all the blood cells and the lymphoids are produced, whereas the thymus is a lobed organ that is located near the heart and beneath the breastbone. The thymus at the time of birth is large in size, but it reduces with the age. Both bone marrow and the thymus provide the microenvironment for the development as well as the maturation of T lymphocytes. At the primary lymphoid organs, the lymphocytes originate, differentiate, and mature. When these lymphocytes mature, they migrate toward the secondary lymphoid organs. The secondary lymphoid organs include spleen, lymph node, tonsils, and Peyer's patch. It is a site where the lymphocytes interact with the antigens. When we talk about the spleen is a bean-shaped structure and it contains the lymphocytes and the phagocytes. The spleen also acts as a filter for the blood by trapping the blood-borne microorganisms. It is also a large reservoir of erythrocytes. When we talk about the lymph node, they are located at the different point along the lymphatic system. The lymph node also traps the microorganisms or the antigens which happens to get into the lymph and the tissue fluid. The antigens which are trapped in the lymph node are responsible for the activation of lymphocytes present and cause the immune response. It means the primary lymphoid organ are the sites where the lymphocytes originate and matures, and the secondary lymphoid organ are the site where these lymphocytes interact with the antigen and produces a immune response. Then we have also talked about the MALT. MALT full form is mucosa associated lymphoid organ. The location of MALT is the lining of respiratory, digestive and urogenital tract of human body. The MALT constitutes around 50% of total lymphoid tissues of the human body. Now, we will proceed towards our today's session, and here we will talk about a harmful disease, that is AIDS. The AIDS is caused by a virus called as HIV, that is human immunodeficiency virus. The word AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. तो ये जो वर्ड है एड्स, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर acquired, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर deficiency and S for syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that
इट इज़ नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज़। तो एड्स का मतलब ये होगा कि इस टाइप की डेफिशिएंसी या इस टाइप की कमी किसी भी इम्यून सिस्टम के अंदर जो कि क्या होती है, इंसान को लाइफ टाइम में अक्वायर होती है, यानी कि बाय बर्थ नहीं होती है। जो किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ स्पेन होगा उस टाइम पे वो अक्वायर की जाती है। और इसका मतलब ये है कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, यानी कि ये कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है कि जनरेशन बाय जनरेशन पास होने वाली डिजीज़ नहीं है। द सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो जो एड्स के फुल फॉर्म हैं वहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स का एक साथ दिखना। The AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million of persons. तो जो एड्स की बीमारी है वो सबसे पहले कब लोगों के जान में आई थी? 1981 के ड्यूरेशन के आसपास, और पिछले 25 साल के आसपास ये बीमारी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई है और अराउंड 25 मिलियन जो लोग हैं उनकी इसकी वजह से डेथ भी हो चुकी है। द एड्स इज़ कॉज्ड बाय अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज़ HIV, a member of group of viruses called the retrovirus, which have an envelope enclosing the RNA genome. तो ये जो बीमारी है इसको कौन कॉज करता है? HIV वायरस कॉज करता है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV वायरस है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? रेट्रो वायरस की जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। कॉमन कॉल्ड था राइनो वायरस, वहीं जो HIV है वो है रेट्रो वायरस। क्या होता है इस रेट्रो वायरस की फैमिली के पास ऐसा कि इसके पास एक एनवलप होता है जिसके अंदर ये वायरस होगा, और इस जो एनवलप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? RNA का जीनोम प्रेजेंट होता है। और यही जो RNA का जीनोम है ये सेल के अंदर एंटर होने के बाद में रेप्लिकेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या कर लेता है, जो वायरल DNA है उसकी फॉर्म के अंदर आ जाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरैक्शन करके अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन generally occurred by a sexual contact with the infected person, by the transfusion of contaminated blood and the blood product, by sharing the infected needle, as in the case of intravenous drug abuses, and from the infected mother to her child through the placenta. तो ये जो बीमारी है HIV इन्फेक्शन है ये कैसे फैल सकता है? तो सबसे पहला तो है कि सेक्सुअल कांटेक्ट हो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। दूसरा है कि अगर किसी एक इंसान को ये एड्स हुआ है और अगर उसी का ब्लड हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर पहुंचा दें तो वो जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है, यानी कि जो कंटामिनेटेड ब्लड है उसके ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरा है कि जो इन्फेक्टेड निडल है, यानी कि अगर हमने किसी भी कोई इंजेक्शन वगैरह दिया है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, अगर वही सेम इंजेक्शन अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर भी चली जाए वो निडल, तो उससे भी ये जो वायरस है वो हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर फैल सकता है। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ड्रग अब्यूज़र्स के, यानी कि वो इंसान जो कि ड्रग्स वगैरह लेते हैं उन टाइप के, और स्पेशली जो ड्रग्स इंजेक्ट करके लिए जाते हैं इंजेक्शन की मदद से, तो अगर वो निडल अगर बहुत सारे लोगों के अंदर शेयर हो तो उससे भी वो जो वायरस है वो फैल सकता है। और चौथा है कि जो इन्फेक्टेड मदर है
उससे उसका जो चाइल्ड होगा उसको भी फैल सकती है ये बीमारी। पर हमने अभी अभी बोला कि ये जेनेटिक नहीं है, तो ये कैसे फैल रही है? जो मदर का प्लेसेंटा है उसके थ्रू ये बीमारी फैल रही है, उस चाइल्ड तक पहुंच रही है। सो people who are at the high risk of getting this infection includes individuals who have multiple partners, drug addict who have taken the drug intravenously, individuals who require the repeated blood transfusion, and children born to a HIV infected mother। तो कौन होंगे सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे, जिनको ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस होंगे? सबसे पहले तो कौन होगी कि जो इन्फेक्टेड मदर है उससे उस के अंदर फैल सकती है। दूसरा, जो ड्रग्स वगैरह का कंजप्शन करते हैं इंट्रावेनसली, यानी कि जो इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनके अंदर, जिनके बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके साथ साथ। और चौथा कौन सा हो सकता है? ऐसे इंसान जिनको बार बार ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके अंदर किसी भी इंसान को बार बार ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती हो? तो आप ऐसे भी बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं जिनके अंदर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और AIDS is not spread by the mere touch or the physical contact. It's spread only through the body fluid. तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो HIV AIDS हैं वो किसी से बात करने से या उस इंसान से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर उस इंसान का कोई भी जो बॉडी का फ्लूइड है अगर वो एक्सचेंज हो रहा है हेल्दी इंडिविजुअल के साथ तभी फैलेगा। इट इज़ hence imperative for the physical and the physiological well-being that the AIDS or HIV infected person are not isolated from the family and the society। तो अब हमें ये पता है कि किसी से बात करने से या किसी से हैंडशेक करने से एड्स नहीं फैल रहा है, तो ऐसे लोग जिनको ये बीमारी है उनको सोसाइटी से आइसोलेट यानी कि अलग करना बहुत गलत चीज़ है। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom। पर इस बीमारी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्फेक्शन होने का टाइम और जो उसको सिम्टम्स दिखने का टाइम है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप प्रेजेंट है। यानी कि जो HIV का इन्फेक्शन है वो बहुत पहले हो जाएगा और जो सिम्टम्स दिखेंगे वो बहुत बाद में दिखते हैं। This period may vary from a few months to many years। और ये जो हमने टाइम लैग की बात करी यानी कि जो टाइम गैप की बात करी है इन्फेक्शन और सिम्टम्स के बीच में, वो डिपेंड करता है कितना भी हो सकता है, बहुत वेरिएशन है। कुछ महीने से लेके कुछ साल तक भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखने में टाइम लग सकता है। नॉर्मली 5 से 10 साल जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी लग सकती है सिम्टम्स को दिखने में। अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस वेयर RNA genome of the virus replicate to form the viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। तो जैसे ही ये वायरस इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करता है मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर होता है, वहाँ पे क्या होगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेट्रोवायरस के बारे में कि इनके अंदर एक वो होता है कैप्सूल होता है, एक एनवेलप होता है
और उसी एनवेलप के अंदर इनका आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। तो जब ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करेगी तो इसका जो आरएनए जीनोम है वो क्या करने लगेगा, रेप्लिकेट कर लेगा खुद को। रेप्लिकेट करके खुद को क्या बना लेगा, वायरल डीएनए बना लेगा। यानी कि था तो ये आरएनए का जीनोम, पर इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया और रेप्लिकेट करके क्या बना लिया, वायरल डीएनए बना लिया। अब इसने जो खुद को रेप्लिकेट किया है, इसके लिए इसको एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ी है। और वो कौन सा एंजाइम है जिसकी मदद से हम आरएनए को रेप्लिकेट करवा सकते हैं डीएनए के अंदर? उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यानी कि सीधी भाषा में यहाँ क्या हुआ है कि जैसे ही सेल के अंदर एंटर किया है वायरस ने, इसने आरएनए से क्या बना लिया है, डीएनए बना लिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। The viral DNA get incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce the virus particle. अब जैसे ही इसने वायरल डीएनए बना लिया, जो सेल का खुद का जो डीएनए था उसके साथ ही उसी के अंदर ये जुड़ जाएगा, ये वायरल डीएनए, और क्या करेगा, जो सेल को अपनी मर्जी से काम करवाएगा। यानी कि जो खुद के जो वायरल पार्टिकल्स हैं उनको बनवाना शुरू करेगा। जो सेल के जो नॉर्मल डीएनए का जो काम था वो काम अब नहीं होगा, अब वो काम होगा जो कि ये वायरस करवाना चाहेगा। वायरस क्या करवाएगा, खुद की जो प्रोजेनीज हैं उनको प्रोड्यूस करवाना शुरू करेगा। द मैक्रोफेजेस continues to produce the virus and in this way act like a HIV factory. तब ये मैक्रोफेजेस का जो डीएनए था उसके अंदर ये खुद मिल चुका है वायरल डीएनए, और उससे क्या करवा रहे, अपनी वायरसेस को, प्रोजेनीज को मल्टीप्लाई करवा रहे। तो इसी वजह से क्या होगा, उस सेल के अंदर बहुत सारी वायरसेस का फॉर्मेशन होने लगेगा। साइमल्टेनियसली the HIV enters into helper T lymphocytes, replicate and produce the progeny virus. तो इसी टाइम पे ये जो HIV है, ये टी लिम्फोसाइट, यहाँ TH का मतलब ये है कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं उनके अंदर चला जाएगा और वहाँ भी खुद को रेप्लिकेट करवाएगा, यानी कि अपना नंबर बढ़ाएगा। द प्रोजेनी वायरस released into the blood attack another helper T lymphocyte, और इन T lymphocyte पे रेप्लिकेट करवाने के बाद उसका जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह है सबको यूज़ करने के बाद ये क्या करेगा, अगली हेल्पर T lymphocyte के पास पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू और उसको अटैक करेगा। दिस इज द रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocytes into the body of the infected person। और ऐसे करके ये इसकी साइकिल चलती जाएगी। पहले एक टी लिम्फोसाइट को डैमेज करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और ऐसे करते करते ये बॉडी के अंदर जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं उसका नंबर बहुत कम करवा देगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम अ बाउट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो जब ये पूरा साइकिल चल रहा है, रिपीटेड साइकिल हो रहा है, ये जो वायरस अपने आप की प्रोजेनीज बना रहा है, खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, उस टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और इसके साथ साथ डायरिया भी हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to the bacteria, especially Mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like Toxoplasm, etc. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने धीरे धीरे किस चीज़ को अटैक करना शुरू किया है, टी लिम्फोसाइट को अटैक करता जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर टी लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी जो छोटी छोटी बीमारियां, जो छोटे छोटे बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन
जिसके खिलाफ हमारी बॉडी ईजिली लड़ सकती है और वो बीमारियां हमको नहीं होने देगी। पर जब किसकी मदद से लड़ रही है, वो टी लिम्फोसाइट की मदद से लड़ रही है। पर ये टी लिम्फोसाइट ही कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा शरीर छोटी छोटी बीमारियों के अगेंस्ट भी लड़ने की जो उसकी क्षमता है उसको खो देगा। क्यों? क्योंकि ये जो HIV इन्फेक्शन है ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करता जा रहा है। तो इस टाइम पे इंसान के अंदर अगर बिल्कुल नॉर्मल बीमारियां भी होंगी तो वो बीमारियां भी ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो इनके खिलाफ लड़ पाए। The patient became so immunodeficient that he or she is not able to protect himself and herself against these infections. तो हमारा जो कोई भी जो पेशेंट है जिसको ये बीमारी हुई है वो क्या बन जाएगा? इम्यूनोडेफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और इसी की वजह से वो अपने आप को छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। A widely used diagnostic test for the AIDS is enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA. तो जो एड्स को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है? ELISA. ELISA की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीट के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स और HIV। तो सही आंसर क्या है? ELISA। और एक बार तो ELISA की फुल फॉर्म ही पूछी गई है कि ELISA स्टैंड्स फॉर व्हाट। द ट्रीटमेंट फॉर एड्स विद द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज़ ओनली पार्शली इफेक्टिव। तो ऐसे ड्रग्स का यूज़ करना जो कि इन रेट्रोवायरस के खिलाफ काम करते हैं। जहाँ भी किसी चीज़ के वर्ड नाम के आगे अगर एंटी लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ उसके अगेंस्ट में काम करेगी। द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज़ ओनली पार्शली इफेक्टिव इन द केस ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग the life of the patient but can't prevent the death which is inevitable. तो ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को कुछ टाइम तक के लिए उस बीमारी से बचा सकती हैं पर डेथ को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती हैं। यानी कि इस बीमारी से डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अबाउट 99% चांसेस हैं मरने के। अब हम लोग एक बार डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर वायरस दैट इज़ HIV, जिसको हम रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करती है। ये क्या है इसका? दैट पोर्शन इज इट्स एनवलप। अब ये इसका एनवलप है और ये क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? वायरल RNA, जो इसका जीनोमिक RNA है वो है। तब ये किसी नॉर्मल सेल के अंदर गई, तो जब भी कोई वायरस सेल के अंदर एंटर करती है तो उसका ये जो एनवलप है जिसको हम बहुत बार कैप्सूल भी बोलते हैं ये बाहर ही रहता है। सेल के अंदर क्या एंटर करेगा? इसका जो वायरल जीनोम है दैट इज़ RNA, सिर्फ वही एंटर करेगा। अब इसने क्या किया है? ये एंटर हो गया है हमारी एनिमल सेल के अंदर। दिस इज आर एनिमल सेल। एंटर होने के बाद क्या करेगा? ये तो है RNA, तो अब ये करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से खुद को DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ये DNA के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये DNA किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी किसके अंदर जुड़ेगा? जो हमारे सेल का DNA है, और सेल का DNA कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाके जो सेल का DNA है उसके साथ मिल जाएगा और तो क्या करवाएगा वहाँ पे? अपनी जो खुद की प्रोजेनीज हैं, अपना जो खुद का नंबर है, ऐसे जो अपने खुद वायरसेस के जो प्रोजेनीज हैं उनको इंक्रीज करवाएगा। उससे क्या होगा? नई नई वायरसेस बन जाएंगी। अब ये जो नई वायरस बनी हैं
ये किसी दूसरी सेल को जाके अफेक्ट करेंगी और ऐसे करते करते इनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो HIV वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कौन सी फैमिली है, रेट्रोवायरस फैमिली। दूसरा है कि जो जीनोमिक RNA है वो खुद को वायरल DNA के अंदर किस एंजाइम की मदद से ट्रांसफ़र करवाता है, तो इसका आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है वो ये है कि ये जो RNA है, ये जो वायरस है ये कौन सी सेल्स को अफेक्ट करता है, तो ये हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। और जो चौथा क्वेश्चन आता है नॉर्मली वो ये है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स का वो कौन सा है, तो एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है ELISA, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।